اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنے رسالت کا اعلان کیا، چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا، میں برس کے مریض کا علاج کروں گا، حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارے دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں کے، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کہ ہمراہ سرزمین میں اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپائش دیکھا اسے ابن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی کے انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتر، لونما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسکریوتی۔ آخری حواری یہودا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزات دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخواں مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے، جو شک و شبہ کے بوجھ دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حسینیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میرے لیے آسمانی دسترخواں نازل فرما، آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو، ہمیں روزی عطا فرما تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخواں بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخواں نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں ہوا ہوگا۔ دسترخواں نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخواں ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخواں نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخواں فقراء کے لیے بچائیں، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید
तरदीद में पड़ गए और दूसरे लोग भी इस दस्तरख्वां के मौजूदा होने के बारे में शक करने लगे। खुदावंद मुताल ने इसी वजह से इनमें से 333 मुर्दों को सूर की शक्ल में मुंतकिल कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें कर गंदगी वगैरह खाते। इन लोगों के रिश्तेदार गिरियाजारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज बाद वो सब के सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तबलीग दीन के लिए एक अहम तरीन काम सीरो सियाहत था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था, वो हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ नजर आता था। एक सफर में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ। दोनों चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से कहा बिस्मिल्लाह, फिर पानी पर चलना शुरू कर दिया। इस छोटे कद के शख्स ने जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देखा तो इसने भी यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। वो चलते चलते जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो खुद पसंदी के जाल में फंस गया और अपने आप से कहने लगा, ये ईसा रूह अल्लाह है जो पानी पर चल रहे हैं, और मैं भी ये पानी पर चल रहा हूँ, बस इन्हें मुझ पर क्या फजीलत हासिल है। इसी लम्हा इसके पाँव बेकरार हुए और पानी में गर्क होने लगा और डूबना शुरू हो गया। इसने फरियाद बुलंद की, ऐ रूहे अल्लाह, मेरा हाथ थाम ले और मुझे गर्क होने से बचा ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बाहर निकाला और फरमाया, ऐ दोस्त, तुमने क्या कहा कि पानी में डूबने लगे थे? दोस्त ने कहा, मैंने कहा था कि रूहे अल्लाह भी पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर चल रहा हूँ, बस हमारे दरमियान क्या फ़र्क है, यानी मुझे खुद पसंदी ने अपने नरगे में ले लिया, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को इस मकाम मर्तबा पर समझा जो खुदा ने तुम्हारे लिए करार नहीं दिया था, लिहाजा तुम्हारे ऊपर खुदा का गजब नाजिल हुआ है। जो कुछ तुमने कहा है अब इससे तौबा करो। इस शख्स ने तौबा की, इसके बाद उसे वही मकाम मर्तबा मिल गया जिस पर खुदा ने इसे फायज किया था। नाज़रीन, एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवाले तक पहुँचे। क्या देखते हैं कि वहाँ पर इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है कि ये सब लोग इज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके होंगे, क्योंकि अगर वो एक के बाद दीगरे मरते तो ज़रूर एक दूसरे को सुपुर्द खाक करते। हवारियों ने अर्ज किया, ए रूहे खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो इन्हें जिंदा कर दे ताकि नाजिल होने वाले इस अजाब की वजह बयान करें जिसकी इज़्ज़त में ये लोग आए, ताकि हम इस काम से परहेज करें जिसकी वजह से इन पर यह अजाब नाजिल हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में इनके जिंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज़ आई कि इन्हें आवाज़ दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टेले पर चढ़े, फरमाया, मैं इस गाँव के लोगों, इनमें से एक शख्स जिंदा हो। उसने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीज़ों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ है। तागोत यानी गुमराही की परस्तश, खुदा से कम खोफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी आरज़ुएं और दुनिया के खेलो कूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती। जिस वक़्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं, और जब पुश्त कर देती है तो हम गिरियाजारी करते हैं और गमे ज़द हो जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तश करते थे? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनहगारों की अतायतो पैरवी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकबत कैसे अंजाम पजीर हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और इसकी सुबह को हाविया में थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हामिया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, सजीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सजीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आंख से पिघले हुए पहाड़ हैं जो ता क़यामत हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और अल्लाह ताला के फरिश्तों ने तुम्हें क्या कहा था? जिंदा शुदा मर्दा ने कहा, हमने कहा था कि हमें दुनिया की तरफ पलटा दो कि वहाँ पर नेक काम अंजाम दे और ज़ाहदो पासा बन जाए। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस किया हुआ है कि इन हालात होने वालों में से तुम्हारे अलावा मेरे साथ किसी और ने गुफ्तगू नहीं की।
की है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ऐ रूहे खुदा, इन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब करीउल मंजर फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में इन लोगों के दरमियान रहता था, लेकिन इनसे नहीं था और इनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब अमूमी अज़ाब आया तो मैं भी इसमें गिरफ्तार हो गया था। इस वक्त बाल की मानद बारीक तार से दोज़ख की आग के ऊपर लटक रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ से मैं निजात पाऊंगा या शायद इसमें गिर जाऊंगा। शायद इस शख्स को आज़ाद अमर बिल मारूफ और नहीं अनुल मुनकर तरक करने की खातिर हुआ होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, ऐ खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेज़ों को ऐ खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना, लकड़ी के रेज़ों के ऊपर सोना बहुत अच्छा है, अगर वो दुनिया आखिरत की सलामती के हमरा हो। बनी इसराइल अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ऐसा ख़ानदान आबाद था कि इनमें से जो कोई भी 40 रातें सुबह तक मुसलसल इबादत और रादो नियाज में गुजारता तो उसकी दुआ कबूल हो जाती। इस ख़ानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत खुदा और रादो नियाज में गुजारी। इसके बाद दुआ की, लेकिन इसकी दुआ कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, शिकायत की और इनसे इल्तमास की कि इसके लिए दुआ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वदू किया, 2 रकात नमाज बजा लाए। इसके बाद इस परेशान हाल बंदे के लिए दुआ की। उस वक़्त उन पर खुदा ने यूं वही नाजिल फरमाई, ऐ ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा। वो मुझे तो पुकारता है, लेकिन इसके दिल में तेरी पैगम्बरी के बारे में शक है। इस वजह से अगर वो इस कदर दुआ करे इसकी गर्दन कट जाए और इसकी उंगलियों की पूरे ख़त्म हो जाए तो मैं तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सारा मादा इस शख्स से बयान किया। इसने अर्ज़ किया, ऐ रूहे खुदा, हकीकत वही है जो आप अलैहिस्सलाम ने बयान की है। मैं आप अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि ये शक बरतरफ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रहबरी का यकीन हुआ। इसके बाद इसकी तौबा कबूल हुई और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह 40 रात इबादत और अफराद न्याज के बाद इसकी दुआ भी कबूल हो गई। एक दिन अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की तरह 40 रात इबादत की, फिर उसके बाद उसकी दुआ भी कबूल हो गई। एक दिन किसी शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया है जिसने ज़िंदा होने के बाद कुछ अरसा ज़िंदगी गुजारी हो, दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा किया हो और साहिबे औलाद हुआ हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी इसके घर के करीब से गुजरते तो इसके घर में जाते, इसकी अहवाल परसी करते। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफ़र पर चले गए। जब वापस पलटे तो इन्हें अपना दीनी भाई याद आया। इससे मिलने इसके घर गए तो ताकि अहवाल परसी करें। इस शख्स की माँ घर से बाहर आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने कहा, ऐ पैगम्बरे खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की वालदा से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को ज़िंदा देखें? माँ ने अर्ज किया, हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊँगा और आपके बेटे को ज़िंदा करूँगा अज़न खुदा की तरफ से। जब कल हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालदा के पास आए और फरमाया, आए दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। माँ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अपने बेटे की कब्र पर जाने का फ़ैसला किया और वो दोनों कब्र पर चले गए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की, कब्र शक हो गई। इस खातून का बेटा जिंदा होकर कब्र से बाहर आया। जब इसने माँ को और माँ ने इसे देखा तो बाहम गिरियाजारी करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस माँ बेटे पर रहम आया। अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के हमरा दुनिया पर रहना चाहते हो? इसने अर्ज किया, यानी गदा खाऊं, रोज़ी कमाऊं और एक मुद्दत तक जिंदा रहूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क्या ये चाहते हो कि 20 साल खाना खाऊं, रोज़ी कमाऊं, शादी करूं और साहिबे औलाद हूँ? इसने अर्ज किया, हाँ, मैं इस पर राज़ी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को इसकी माँ के सुपुर्द किया और वो 20 साल तक जिंदा रहा। इसने शादी की और साहिबे औलाद भी हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।